Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is Unit 7, which is Sultan Ahmad Mosque. I will share the screen with you, then we will discuss some of the paragraphs from the unit. تو یہ ہے ہمارا اسکرین ہوپفلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو گیا ہے میرا سلطان احمد مسجد یہ یونٹ ہے اس منتھ کا لاسٹ یونٹ تھا ہمارا تو اس میں پہلے جس طرح ہم کرتے رہے ہیں باقی یونٹس اسی طرح اس کے بھی پیراگراف وائز ورڈس میننگ سے ہیں ان کو پہلے ہم ڈسکس کر لیں گے دین جو ہے اس پورے پیراگراف کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو نمبر فرسٹ ورڈ ہیئر از امپریسو ٹھیک ہے امپریسو کا مطلب ہے متاثر کن آپ لکھے یا متاثر کرنے والی یا والا کوئی چیز ٹھیک ہے امپریسو ٹھیک ہے اس کو آپ متاثر کن بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے مونومنٹ عجوبہ یا یادگار ٹھیک ہے مونومنٹ یادگار صرف آپ لکھ لیں ایمبیلش خوبصورت بنانا سجانا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ایمبیلش یہ سارے ورڈس جو ہیں پیراگراف نمبر فرسٹ میں یوز ہوئے ہیں انٹیریئر انٹیریئر ہوتا ہے اندرونی حصہ کسی بھی چیز کا اندرونی حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹیریئر ایکسٹیریئر ہوتا ہے باہر کا حصہ ٹھیک ہے اس سچویٹڈ ٹھیک ہے واقع یا صرف سچویٹڈ لکھے واقع ٹھیک ہے کسی جگہ پہ ہونا ٹھیک ہے قائم ہونا آٹومین امپائر کا ورڈ یوز ہوا ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے لیے یوز ہوا ہے یا خلافت عثمانیہ ٹھیک ہے سلطنت عثمانیہ لکھے یا آپ خلافت عثمانیہ لکھے دونوں باتیں سیم ہیں امپائر کا مطلب ہے سلطنت ٹھیک ہے اسی طرح ٹورسٹ اٹریکشن اس کا مطلب ہے سیاحوں کی کشش ٹھیک ہے یعنی سیاح جو سیر تفریح کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ کسی جگہ کی طرف زیادہ جاتے ہوں کسی جگہ کو جانے پسند کرتے ہوں اس کو کہتے ہیں ٹورسٹ اٹریکشن ٹھیک ہے پاپولر مشہور ٹھیک ہے تو یہ سارے ورڈس جو ہیں جو ہم فالوئنگ پیراگراف ڈسکس کریں گے اس میں سارے یوز ہوئے ہیں تو پیراگراف دیکھ لیتے ہیں The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. ٹھیک ہے یعنی امپریسو ہم نے کہا متاثر کن تو کہتا ہے سلطان احمد مسجد جو ہیں وہ دنیا میں کیا ہے سب سے متاثر کن یادگار ہے ٹھیک ہے یا مسجد سلطان احمد دنیا کی انتہائی دلکش یادگاروں میں سے ایک ہے ٹھیک ہے It is also known as the Blue Masjid. اسے نیلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے نیلی مسجد بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے because the reason is because of the blue tiles that embellish its interior ٹھیک ہے اس کو نیلی مسجد سے بھی جانا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے اندرونی حصہ جو ہے وہ نیلے ٹائلوں سے آراستہ کیا گیا ہے یا سجایا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی اندرونی جو حصہ ہے اس سارے کو نیلے ٹائل سے سجایا گیا ہے جس کی وجہ سے نیلی مسجد بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ لائن ہے situated in Istanbul the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923 It has been the most popular tourist attraction ٹھیک ہے تو یہ کہاں ہے استنبول جو ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اس میں واقع ہیں جو کہ استنبول جو ہے وہ 1453 سے لے کے 1923 تک خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ رہ چکا ہے ٹھیک ہے یعنی خلافت عثمانیہ جب تک قائم تھی اس وقت تک استنبول جو شہر ہے وہ ترکی کا دارالحکومت ہے ٹھیک ہے یہ سیاحوں کے لیے بہت اس سے آگے جو ہے it has become the most popular tourist attraction ٹھیک ہے یہ سیاحوں کے لیے بہت مشہور و معروف پرکشش جگہ بن چکی ہے ٹھیک ہے یعنی سیاح جو ہیں وہ بڑے
शौक से जो है इस जगह का विजिट करते हैं। ठीक है, ये मतलब है। ये फर्स्ट पैराग्राफ था। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम मूव करते हैं। तो उसमें भी कुछ वर्ड्स हैं पहले की तरफ। तो उसमें फर्स्ट वर्ड है कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तामीर की गई है। कंस्ट्रक्ट तामीर करना, तो ये पास फॉर्म यूज हुआ है कंस्ट्रक्टेड, तो इसका मतलब होगा तामीर की गई। ठीक है, इसी तरह कस्टम रवाज, तौर तरीका, अंदाज। ठीक है, उसको कहते हैं कस्टम। इसी तरह आगे चलते हैं तो टॉम मकबरा। ठीक है, इसी तरह कंप्राइज मुश्तमिल होना, यानी दिस लिस्ट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। ये जो लिस्ट हैं ये इतनी चीजों पे मुश्तमिल है। ठीक है, जो हम कहते हैं मुश्तमिल है उसको कहते हैं इंग्लिश में कंप्राइज। ठीक है, इसी तरह हॉस्पाइस। ठीक है, तो मुसाफिर खाना लिखे। ठीक है, मोहताज खाना ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं है जो इधर लिखा हुआ है, मुसाफिर खाना। ठीक है, इसी तरह मदरसा, तो मदरसा ही हो गया, उसको इंग्लिश में भी मदरसा कहते हैं। रूल, हुक्मरानी। ठीक है, उसूल, असूल को भी कहते हैं। तो यहाँ हुक्मरानी के लिए यूज हुआ है रूल। ठीक है, रूल हुक्मरानी के लिए हमने यूज किया हुआ है। तो इसमें आप देखते हैं सेकंड जो पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है, तो उसमें बेसिक क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इसमें है इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616। ठीक है, यानी इट वाज का मतलब है ये मस्जिद जो है उसकी बात हो रही है। मस्जिद जो है वो 1609 से लेके 1616 ईस्वी के दौरान कायम की गई थी या तामीर किया गया। ठीक है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन। तो ये अहमद वन के, यानी अहमद अव्वल कहेंगे आप उर्दू में। ठीक है, ये अहमद अव्वल के दौर हुकूमत में 1609 से लेकर 1616 ईस्वी के दरमियान तामीर किया गया। एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था। ठीक है, जैसा कि रिवाज था। दिस मस्जिद लाइक द अदर मस्जिद ऑफ द टाइम comprises a tomb of the founder। ठीक है, उस फाउंडर की गुंबद जो है वो शामिल थी। ठीक है, tomb of the founder एंड मदरसा एंड आ होस्पाइस। ठीक है, यानी जैसा कि रवाज था, यानी रवाज का मतलब जो है उस दौरान जो भी मस्जिद बनती थी उसके अंदर एक जो है मकबरा कायम होता था, एक मदरसा और एक मुहताज खाना या मुसाफिर खाना। ये सब सारी चीजें मस्जिद के साथ शामिल होते थे। तो बाकी मस्जिदों की तरह इस मस्जिद में भी एक मकबरा, मदरसा और मुख्तार खाना जो है वो शामिल थी। ठीक है, तो ये तीन चीजें वहां शामिल थी। नेक्स्ट पे देखते हैं थ्री पे। तो थ्री है स्टार्टेड, तो शुरू हुआ। ठीक है, रॉयल, शाही। ठीक है, बादशाही। आर्किटेक्ट, माहिर फन तामीर। ठीक है, यानी फन तामीरात का माहिर, जो जिसको कोई मकान या कोई बिल्डिंग तामीर करना आता हो, मुख्तलिफ तरीकों से बनाना आता हो, उसको कहते हैं आर्किटेक्ट। कंप्लीशन, तकमील, मुकम्मल होना। ठीक है, सेरेमनीज, तकरीबात। ठीक है, जिस तरह शादी की सेरेमनी होती है इस तरह। लास्ट अकाउंट्स, आखिरी हिसाब किताब। ठीक है, सक्सेसर कहते हैं जानशीन, एक के बाद दूसरा, यानी बेटा अगर बादशाह था तो उसका सक्सेसर, बाप बादशाह था सॉरी, तो उसका सक्सेसर जो है वो बेटा बनता है, तो उसको कहते हैं सक्सेसर, जानशीन। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। थ्री, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609। ठीक है, यानी मस्जिद की तामीर 1609 ईस्वी में शुरू की गई। द रॉयल आर्किटेक्ट सदफर महमद आगा। ठीक है, जो शाही तामीरात का माहिर था, was appointed by सुल्तान as in charge of the project। ठीक है, सुल्तान ने क्या किया था, माहिर तामीरात सदफार महमद को, ठीक है, महमद आगा को इस मंसूबे का इंचार्ज मुकर्रर किया था।
ठीक है, इंचार्ज बनाया था, सारा मामला जो है मस्जिद का वो खुद देख रहे थे। द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616, इसकी इफ्तिताई तकरीबा 1616 ईस्वी में मुनक़िद हुई, ठीक है, यानी 1616 में वो मस्जिद मुकम्मल हो गई थी, तो इसका इफ्तिताई तकरीब हुआ था, ठीक है। इसके बाद unfortunately the sultan could not see the completion of the masjid in his life, ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से सुल्तान जो खुद थे यानी अहमद, उसने अपनी ज़िंदगी में उस मस्जिद की तकमील नहीं देख सका, ठीक है, यानी इससे पहले ही वो फौत हो चुके थे। इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन, तो ये इसमें जो मस्जिद हैं वो इसके जानशीन मुस्तफ़ा वन के टाइम में, मुस्तफ़ा वन के दौर में मुकम्मल हुई, ठीक है, यानी उसके अपनी दौर हुकूमत में वो मस्जिद मुकम्मल नहीं हुई थी, उसकी तामीर पूरी नहीं की गई थी, ठीक है, तो ये बात है इसमें। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, तो इसमें है अटेन, हासिल किया, ठीक है, अटेन हासिल करने को कहते हैं। ऑटोमन मस्जिद, उस्मानी मस्जिद, ठीक है, खिलाफत उस्मानिया के टाइम बनाई गई मस्जिद। बाइजेंटाइन, ठीक है, बाज नीतीनी, ठीक है, इस तरह डेवलपमेंट तरक्की, कैप्ट इन व्यू मत नजर रखना, ठीक है, नजर में रखना। मॉडल नमूना, साइज साइज हो गया, ठीक है, अनमेच बेनजीर बेमिसाल, ठीक है, स्प्लेंडर शान व शौकत, मैजेस्टी जाह जलाल, ठीक है, रोब दबदबा उसको कहते हैं मैजेस्टी। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन मस्जिद एंड बाइजेंटाइन चर्च, नीली मस्जिद का जो डिज़ाइन है वो खिलाफत उस्मानिया के मस्जिदों की तरह है, टाइम के मस्जिदों की तरह, और बाइजेंटाइन की मस्जिद जिस तरह बनाते थे कलीसा, ठीक है, चर्च जो है उनको कलीसा, तो वो इस तरह की तरह से बनाई गई मस्जिद थी। हाजिया सोफिया a masjid, one of the wonders of the Muslim architecture, was also kept in view as a model। तो हाजिया सोफिया एक मस्जिद है, ठीक है, खिलाफत उस्मानिया के टाइम की, इसको भी इस मस्जिद की तामीर के दौरान मद नज़र रखा गया था, यानी इसका स्ट्रक्चर, उसका साख बनावट को मद्देनजर रख के ये मस्जिद तामीर किया गया था। The Blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size। तो नीली मस्जिद आज भी शान और शौकत, उसकी शाही जाओ जलाल और साइज में बेनज़ीर समझी जाती हैं, यानी इस जितनी बड़ी मस्जिद और इतनी अच्छी डेकोरेशन के साथ मस्जिद जो हैं वो कम मिलती हैं, ठीक है, तो इसको आज भी जो है इसको बड़े उससे देखा जाता है, हैरत की नज़र से, तो इसकी तारीफ की गई है, ठीक है, यहाँ तक उस मस्जिद की डिस्क्रिप्शन थी। यहाँ हम स्टॉप कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग आज नहीं हैं, कल फिर उनके लिए फिर मसला होगा, ज़्यादा हम आगे जाएंगे, तो यहीं यहाँ तक हम स्टॉप कर देते हैं। तो इधर तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। जी मोहम्मद एहसन, कोई सवाल है? आपसे शुरू करते हैं। अब्दुल राफी। जी एहसन, एहसन शहजाद।
मार क्लियर है। यस सर। अच्छा, ठीक है मैं सर जी अटेंड। जी जी क्लियर है। ओ सर जी उसकी के बोलते रहने दे सही। किसकी? ठीक है सर ठीक समझ है आ गया। जी जी ठीक है, गुड है। मैं अटेंडेंस लेता हूँ, उसके बाद आप लोग लीव करेंगे, ठीक है। पहले लीव ना करें, मैं अटेंडेंस लेके फिर आप लोगों से कह देता हूँ लीव करने के लिए, तब आप लीव कर लेंगे। जी अब आप लोग लीव कर सकते हैं। जिस बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन है वो फिर रुकें, बाकी आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।